Hello student, let's start Unit 4 Adolescence. Adolescence means किशोरावस्था. Reading A. Swami is expelled from school. स्वामी विद्यालय से निष्कासित. The headmaster entered the class with a slightly flushed face and a hard ominous look in his eyes. Slightly means हल्के से, flushed means क्रोध में, ominous अपशकुन सूचक. हेडमास्टर अपने चेहरे पर हल्का सा क्रोध लिए हुए और कुछ अपशकुन सूचक भाव आंखों में लेते हुए कक्षा में प्रवेश किए. स्वामीनाथन wished that he had been anywhere but there at that moment. स्वामीनाथन ने सोचा कि वह कहीं भी रहे, लेकिन उस समय उसे वहां रहना चाहिए. The headmaster surveyed the class for a few minutes and asked. हेडमास्टर ने क्लास में कुछ समय तक ध्यान से देखा और पूछा. Are you not ashamed of coming and sitting there after what you did yesterday? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई जो तुमने कल किया था और क्लास में आकर बैठ गए. Just a special honor to them, he read out the names of dozen students or so that had attended the class. उन लोगों को एक विशेष सम्मान देते हुए उन्होंने करीब दर्जन भर स्टूडेंट के नामों को पढ़ा जो क्लास में उपस्थित थे. After that, he read out the names of those that had kept away. उसके बाद उन स्टूडेंट्स के नामों को पढ़ा गया जो कक्षा से बाहर थे. And asked them to stand on their benches. और उन स्टूडेंट को अपने स्थान पर खड़ा होने के लिए कहा. He felt that punishment was not enough and asked them to stand on their desk. उन्होंने सोचा कि सिर्फ उन्हें उनके बेंच पर खड़ा कर देना ही उन लोगों के लिए पर्याप्त सजा नहीं होगी. Swaminathan was among them and felt humiliated at that eminence. Humiliated means होता है अपमानित, eminence means श्रेष्ठ. उनमें स्वामीनाथन भी था और वह उन श्रेष्ठ विद्यार्थियों में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था. Then they were lectured. उसके बाद उन लोगों को भाषण दिया गया. When it was over, they were asked to offer explanation one by one. जब लेक्चर पूरा हुआ, उन स्टूडेंट से एक एक करके उनके न आने का कारण पूछा गया. One said that he had an attack of a headache and therefore could not come to school. एक ने कहा कि उसके सिर में अचानक दर्द उठ गया था, इसलिए वह स्कूल नहीं आ सका. He was asked to bring a medical certificate. उसे मेडिकल सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा गया. The second said that while he had been coming to school on the previous day, someone had told him that there would be no school. दूसरे ने कहा कि जब वह कल स्कूल आ रहा था तो किसी ने उससे कहा कि स्कूल नहीं लगेगी. And he had gone back home. और वह वापस घर चला गया. The headmaster replied that if he was going to listen to every loafer who said there would be no school, he deserved to be flogged. Flog means कोड़े से मारना. हेडमास्टर ने कहा यदि वह इसी तरह किसी भी लोफर की बात को सुनेगा कि स्कूल नहीं लगेगा तो ऐसे लोफर कोड़े खाने के हकदार होते हैं. Anyway, why did he not come to school and verify? खैर, फिर तुम स्कूल में आकर क्यों पता नहीं किए कि स्कूल लगेगा या नहीं? No answer. कोई जवाब नहीं मिला. The punishment was pronounced. सजा सुनाई गई. 10 days attendance cancelled, 2 rupees fine and the whole day to be spent on the desk. 10 दिन की उपस्थिति कैंसिल, 2 रुपए का
फाइन लगेगा और पूरा दिन डेस्क पर खड़ा रहना होगा। The third said that he had an attack of a headache. तीसरे ने कहा कि उसके सिर में दर्द हो गया था। The fourth said that he had stomach. चौथे ने कहा कि उसके पेट में दर्द हो गया था। The fifth said that his grandmother died suddenly just as he was starting for school. और पांचवे ने कहा कि जैसे ही वह स्कूल के लिए निकल रहा था उसी समय उसकी दादी का देहांत हो गया था। The headmaster asked him if he could bring a letter from his father. हेडमास्टर ने कहा कि वह अपने पिता से पत्र ला करके देगा। No, he had no father. नहीं, उसके पिता नहीं हैं। Then who was his guardian? फिर अभिभावक कौन है? His grandmother. उसकी दादी माँ। But the grandmother was dead. Was she not? लेकिन दादी माँ का देहांत हो गया था। No, it was another grandmother. नहीं, दूसरी दादी माँ थी। The headmaster asked how many grandmothers a person could have. हेडमास्टर ने पूछा कि एक व्यक्ति के कितनी दादी माँ हो सकती है। नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिला। कुड ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज नेबर्स, क्या वह अपने पड़ोसी से पत्र ला सकता है? नो, ही कुड नॉट, नहीं, वह नहीं ला सकता। नन ऑफ हिज नेबर्स कुड रीड और राइट बिकॉज he lived in a very illiterate part of 11th Street. उसके कोई भी पड़ोसी लिख पढ़ नहीं सकते क्योंकि वह 11th स्ट्रीट में अनपढ़ वाले इलाके में रहता है। Then the headmaster offered to send a teacher to this illiterate locality to ascertain from the boy's neighbor if the death of the grandmother was a fact. फिर हेडमास्टर ने कहा कि वह एक टीचर को उस अनपढ़ वाले क्षेत्र में भेजकर पता करवाएंगे कि उसकी दादी माँ का देहांत हो गया था। A pause, some perspiration. थोड़ी देर रुके और फिर कुछ पसीने। And then answer that. फिर उन्होंने जवाब दिया। The neighbor could not possibly know anything about it since the grandmother died in the village. उन्होंने उत्तर दिया कि संभवतः पड़ोसियों को नहीं मालूम था कि उसकी दादी माँ का देहांत गांव में हो गया था। The headmaster hit him on the knuckles with his cane. हेडमास्टर ने उसकी उंगलियों पर केन से मारा। Called him a street dog. और उसे गली का कुत्ता कहा। And pronounced the punishment 15 days suspension. Suspension means निष्कासित करना या बाहर निकालना, और 15 दिन के लिए स्कूल से निष्कासन का सजा सुनाया। When स्वामीनाथन्स टर्न came. फिर स्वामीनाथन का बारी आया। He looked around helplessly. उसने अपने आप को असहाय पाया। Rajam sat on the third bench in front and resolutely looked away. Resolutely means दृढ़तापूर्वक। राजम सामने से तीसरे बेंच पर बैठा था और उसने दृढ़तापूर्वक देखा। He was gazing at the blackboard intently. Intently means निष्ठापूर्वक। वह निष्ठापूर्वक ब्लैकबोर्ड को देख रहा था। But yet the back of his head and the pink ears were visible to स्वामीनाथन। लेकिन फिर भी उसके सिर का पिछला भाग और गुलाबी कान स्वामीनाथन को नजर आ रहा था। It was an intolerable sight. Intolerable means असहनीय। यह एक असहनीय दृश्य था। स्वामीनाथन was in acute suspense lest. स्वामीनाथन गहरे रहस्य में था। That head should turn and fix its eyes on his. कि कहीं उसका सिर घूमे और उस पर उसकी आंखें केंद्रित हो जाए। He felt that he would drop
from the desk to the floor if that happened. उसने महसूस किया यदि ऐसा हुआ तो वह डेस्क से गिरकर फर्श पर आ जाएगा. The pink ears, 3 branches of made him incapable of speech. Incapable means अयोग्य. 3 बेंच आगे वह गुलाबी कान उसे बोलने से रोक रहे थे. If only somebody would put a blackboard between his eyes and those pink ears. काश कि कोई उसकी आंखों और गुलाबी कानों के बीच ब्लैकबोर्ड ला देता. He was deaf to the questions that the headmaster was putting to him. वह हेडमास्टर के द्वारा पूछे गए प्रश्न को नहीं सुना. A rap of his body from the headmaster's cane brought him to himself. Rap means मार. हेडमास्टर की केन की मार उसके शरीर पर पड़ने से वह स्वयं में वापस आ गया था. Why did you keep away yesterday? asked the headmaster looking up. कल तुम क्यों नहीं आए थे? हेडमास्टर ने ऊपर देखते हुए पूछा. Swaminathan's first impulse was to protest that he had never been absent. Impulse means उमंग, protest means विरोध. इम्पल्स मीन्स हम विचार भी कह सकते हैं. स्वामीनाथन के मन में पहले विचार विरोध करने का आया कि वह कल अब्सेंट नहीं था. बट द अटेंडेंस रजिस्टर्स वाज देयर. लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर वहीं थी. नो नो नहीं नहीं. आई वाज स्टोन. स्टोन मीन्स जड़वत रहना. वह वहीं पर स्थिर था. आई ट्राई टू कम बट दे टूक अवे माई कैब एंड बर्न इट. मैं आना चाहता था लेकिन वे लोग मेरी कैप ले लिए थे और उसे जला दिए. Many strong men held me down when I tried to come. जब मैं आने की कोशिश कर रहा था तो कई ताकतवर लोग मुझे पकड़ लिए थे. When a great man is sent to gaol. जब एक महान व्यक्ति जेल भेजा है. I am surprised to see you a slave of this Englishman. मैं आपको एक अंग्रेज का गुलाम देखकर आश्चर्यचकित हूँ. Didn't they cut off ढाका मुस्लिम slaves of slaves? क्या उन्होंने ढाका मुस्लिम को नहीं काटा, गुलामों का गुलाम. These were some of the disjointed explanation which streamed into his head. कुछ इस प्रकार के अधूरे व्याख्या उसके दिमाग में चल रहे थे. Which even at that moment he was discreet enough not to express. जिसे वह उस समय स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था. He had wanted to mention a headache. वह चाहता था कि सिर दर्द के बारे में बता दे. But he found to his distress that other beside him had one. लेकिन वह सोचकर व्यथित था कि उसके अलावा और ने भी वही बात कही थी. The headmaster shouted, "Won't you open your mouth?" हेडमास्टर जोर से बोले, क्या तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे? He brought the cane sharply down on Swaminathan's right shoulder. उन्होंने स्वामीनाथन के दाहिने कंधे पर केन से तेजी से मारा. स्वामीनाथन kept staring at the headmaster with tearful eyes. स्वामीनाथन ने अपने आंखों में आंसू लिए हेडमास्टर को घूर कर देखा. Massaging with his left hand the spot where the cane laid. और अपने बाईं हाथ से दाहिने कंधे को जहां चोट लगी थी सहला रहा था. I will kill you if you keep on staring without answering my questions, cried the headmaster. यदि तुम मुझे घूर कर देखोगे और उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा. हेडमास्टर जोर से चिल्लाए. I couldn't come, stammered Swaminathan. Stammered means हकलाना. मैं नहीं आ सका, हकलाते हुए स्वामीनाथन ने कहा. Is that so? asked the headmaster and turning to a boy said, Bring the peon. क्या ऐसा है? हेडमास्टर ने पूछा.
एक बच्चे की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा, प्यून को बुलाओ। स्वामीनाथन ने सोचा, व्हाट इज ही गोइंग टू आस्क द प्यून टू थ्रैश मी? थ्रैश मीन्स पीटना या मारना। अब वह प्यून से क्या पूछकर मुझे मारने वाले हैं? इफ ही डज एनी सच थिंग आई विल बाइट एवरीबडी डेड। यदि ऐसा हुआ तो मैं सभी को काट खाऊंगा। द प्यून केम। चपरासी आया। द हेडमास्टर सेड टू हिम। हेडमास्टर ने उसे पूछा, नाउ से व्हाट यू नो अबाउट दिस रास्कल ऑन द डेस्क। रास्कल मीन्स बदमाश। अब तुम बताओ कि ये डेस्क पर खड़े हुए बदमाशों के बारे में क्या जानते हो? द प्यून आइड Swaminathan with a sinister look, grunted and demanded. Sinister means अशुभ, grunted गुर्राया। प्यून की अशुभ आंखों ने स्वामीनाथन को देखा, गुर्राया और कहा, Didn't I see you break the panes? Panes means कांच। क्या मैं तुम्हें खिड़की का कांच तोड़ते हुए नहीं देखा था? Of the ventilators in my room, added the headmaster with zest. जैश में जोश में। मेरे कमरे का वेंटिलेटर। हेडमास्टर ने अपनी बात को जोड़ते हुए जोश से कहा। Here there was no chance of escape. अब बचने का कोई उम्मीद नहीं था। स्वामीनाथन kept staring foolishly till he received another whack on the back. Whack means चाबुक। एक चाबुक स्वामीनाथन की पीठ पर पड़ने तक वह मूर्खतापूर्वक घूरते हुए देखता रहा। The headmaster demanded what the young brigade had to say about it. Brigade means किसी गैंग का सदस्य। हेडमास्टर ने पूछा कि गैंग का साथी होने के नाते वह इसके बारे में क्या कहना चाहता है। The brigade had nothing to say. उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। It was a fact that he had broken the panes. यह सच था कि उसने कांच को तोड़ा था। They had seen it. There was nothing more to it. उन्होंने देखा था और इसमें और भी कुछ नहीं था। He had unconsciously become defiant and did not care to deny the charge. Unconsciously means अनभिज्ञतावश। Deny means इनकार करना। वह अनभिज्ञतावश ऐसा कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर आरोप लगने पर वह इसे इनकार नहीं किया। When another whack came on his back, he ejaculated, "Don't beat me, sir. It pains." जब उसके पीठ पर दूसरी बार मार पड़ा तो वह तीव्रता से बोला, मुझे मत मारिए सर, दर्द होता है। This was an invitation to the headmaster to bring down the cane 4 times again. यह हेडमास्टर के लिए एक इनविटेशन था कि वह अपनी केन को चौथी बार नीचे कर ले। He said, "Keep standing here on the desk, staring like an idiot till I announce your dismissal." Dismissal means बर्खास्त। उसने कहा, यही डेस्क पर खड़े रहो, मूर्ख के समान घूर रहा है, तुम्हें बर्खास्त करने की घोषणा तक। Every pore in Swaminathan's body burned with the touch of the cane. स्वामीनाथन के शरीर का प्रत्येक रोम केन की मार से जैसे जल रहा था। He had a sudden flood of courage. Courage means साहस। उसके अंदर अचानक साहस आया। The courage that comes of desperation. Desperation means निराशा। यह साहस उसकी निराशा से उत्पन्न हुआ था। He restrained the tears that were threatening to rush out. Restraint means काबू पाना या रोकना। उसने अपने आंसुओं को रोका जो डराने के लिए बाहर आ रहे थे। Jump down and grasping his books. अपनी जगह से कूदा और अपनी किताबों को लिया। Rush out muttering. Muttering means बड़बड़ाते हुए। और बड़बड़ाते हुए बाहर निकला। I don't care
of your dirty school. मैं आपके गंदे स्कूल की परवाह नहीं करता। इसी के साथ यह चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।